Good morning students. Today we are going to start revision lesson 14 main challenges before democracy. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। आज मैं इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो टुडे वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सप्लेन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में एक्सप्लेन करिए। आंसर है व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन becomes very fast and assumes such population that the available resources fall short of the needs of the people. Such situation is termed as population explosion. All the efforts directed towards economic development of the country are multiplied because of the fast growth of the population. When there will be development in our country, then death rate will reduce as compared to birth rate, which will result in population growth. The children born today, if are saved from death, would after 20 to 22 years bear children. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म मीन्स रिस्पेक्टिंग ओनली वंस ओन रिलीजन, स्प्रेडिंग hatred for other religion, working only with the narrow end of respecting own religion and not caring for the larger national interest. Third question, write 4 reasons for the spread of communism. कम्युनिज्म की 4 रीज़न कौन से हैं जो कि स्प्रेड हुए, फैले? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज कम्युनिज्म, राइट इट्स मेन रीज़न। दोनों तरह से क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आंसर है तो 4 रीजन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल, जो हमने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन कराया था कि फर्स्ट रीजन इसका पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सेकेंड रीजन है पॉलिटिकल इंटरेस्ट। थर्ड है लिटरेसी एंड फोर्थ है एक्स एग्रीगेटेड प्रोपेगेंडा। तो फर्स्ट है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा बाय द पीपल इन पावर और दोज स्ट्रविंग टू गेट पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म in the country, as a result of which a sense of distrust has developed among people of different religions who were earlier living in harmony in the country. Second, political interest. The politician and political leaders accept the unreasonable demands of the people of different sects and religions and please them for beginning the elections and political gain. Third, literacy. Some political leaders, also for their selfish motives, don't make efforts in the spread education among us the illiterate people to eradicate unemployment and poverty, and only encourage the people to take religious education of their sex. Fourth है ex-aggregated propaganda. Some countries make ex-aggregated propaganda of small events and arouse communal feelings among the people of the country. Fourth question, why
होता है, जैसे कि बियर वगैरह होती है, उन सब में बैन क्यों लाया गया? बैन ऑफ ड्रग्स, आंसर है इट कंजप्शन ऑफ अ ड्रग्स इज स्टॉपेड और रिड्यूस मेंटल बैलेंस ऑफ द पर्सन विल बी मेंशनड एंड इकोनॉमिक्स प्रॉपर्टी विल increase, there will be peace and happiness in the family and crimes will be reduced, the work efficiency will improve, production will increase and health will improve, our future generation will be healthy and prosperous. Every country has framed policy and rule to prevent drug addiction. Social institutions are also working in this direction to allow social awareness. Fourth question. Fifth question. Write 4 reasons of increase in population. Population increase होने के 4 reasons क्या क्या हैं? फर्स्ट रीजन है लो डेथ रेट। सबसे पहले क्या है रीजन है? लो डेथ रेट। सेकेंड रीज़न है हाई बर्थ रेट, मतलब बच्चों का अधिक ज़्यादा जन्म होना। लो डेथ रेट मतलब मृत्यु दर कम होना। थर्ड है लिटरेसी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साक्षरता की कमी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फोर्थ क्लाइमेट कंडीशन एंड फिफ्थ फैकल्टी इकोनॉमिक्स वाइज। तो फर्स्ट है लो डेथ रेट, मृत्यु दर का कम होना। डेथ रेट मीन्स the number of death per 1,000 in a year. There has been a high decrease in this rate in India. There are several cases of the decrease in death rate in India. The major causes are less epidemics. Epidemics means होती है बीमारियाँ, better health and medical facilities, spread of education in women. women की education अच्छी होनी चाहिए। इंक्रीज एज ऑफ मैरिज की जो एज होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। डिक्रीज इन सुपरविजन एंड बेटरमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी जो है जो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजमेंट है उसका जो रीज़न है वो कम होगा। सेकेंड है हाई बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो जन्म होता है। हाई बर्थ रेट मतलब जल्दी जल्दी बच्चों का जन्म ज़्यादा होता है और मृत्यु कम होती है बच्चों की। तो बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ पर 1,000 इन अ ईयर। एंड इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया इज दैट द बर्थ रेट हियर इज कंपल्सरी इज कंपेरेटिवली देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया लाइक चाइल्ड मैरिज, compulsion of marriage, family beliefs, religions, low standard of living and spread of health facilities. Third point था literacy and low standard living. Standard living हमारा बहुत लो है। The major causes of population growth in population growth का जो major cause है वो क्या है? Illiteracy and low standard of living. Growth in India is the low living standard of the people. There are more children in the poor families. Poor families में आप देखेंगे कि गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करते हैं, जबकि जो हायर लेवल के लोग होते हैं वो कम बच्चे। तो इस तरह से क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत अधिक हो जाती है, मगर उस हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, लो होता है। और हमारे इंडिया में मोस्टली ये देखा गया है कि पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो are compared to the there are more children in the poor families as compared to the rich being illiterate, क्योंकि poor families क्या होती है, illiterate होती है, पढ़े लिखे नहीं होते। These people do not understand the importance of family planning. ये लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में भी नहीं जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। Therefore there is rapid increase in population. तो एक रीज़न ये है कि इसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। फोर्थ पॉइंट क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन का भी इफेक्ट पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉट देयर फॉर चाइल्ड इन द फैमिली ब्रिंग्स अ पेयर ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, he will prove to be helping hand in the household work. They consider children and a boon.
और वो क्या करते हैं, बच्चों का पैदा होना क्या मानते हैं, वरदान मानते हैं, गुण मानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर मैं आती हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। हमारी बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ता है। ड्रग के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा कि ड्रग क्या होता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। दीज डेज द ट्रेन ड्रग एडिशन has increased, which is cause of concern. Drugs production takes place only in a few countries. Their consumption is worldwide. They are smuggled because they fetch very high price. Following commodities may be included in the category of the drug: liquor, cigarette, ganja, bhang, opium, charas, कोकेन, मॉर्फिन, हीरोइन आदि। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ड्रग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट होता है एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। सेकंड इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑन मेंटल एफिशिएंसी। थर्ड इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल कंडीशन। फोर्थ इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑन सोशल स्टेटस। फिफ्थ एक्सीडेंट और सिक्स इंक्रीज ऑफ स्मगलिंग। सबसे पहला जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो होता है हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है। सेकेंड इफेक्ट जो होता है हमारे मेंटल एफिशिएंसी, जो हमारी मानसिक दिमाग पर इसका इफेक्ट होता है। थर्ड इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी पैसा होता है वो ड्रग में हम लोग लगा देते हैं, जिससे हम लोग के परिवार क्या होता है, हमारी जो फैमिली होती है वो मतलब पैसे की तंगी आने लगती है। फोर्थ इफेक्ट सोशल स्टेटस, हमारा जो सोशल स्टेटस होता है वो नीचे गिरने लगता है ड्रग्स के कारण। यदि फैमिली में कोई भी व्यक्ति ड्रग लेता है तो हमारा सोशल स्टेटस लो होने लगता है। 5 एक्सीडेंट, जब भी हम ड्रग्स लेके कहीं भी चलते हैं तो हमारे क्या पीक मतलब लेते हैं तो हमारे क्या एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा कि मेन पॉइंट्स क्या होते हैं ड्रग्स ऑफ इफेक्ट। 6 है इंक्रीज ऑफ स्मगलिंग, और इससे क्या होता है इस स्मगलिंग की जो संख्या होती है वो भी बढ़ने लगती है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर शुड बी अडॉप्टेड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कैसे चेक करेंगे, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कैसे चेक कर सकते हैं, व्हाट मेजर ऑफ शुड बी अडॉप्टेड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट है द मेजर सजेशन टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉम द इंडिया नहीं व्हाट मेजर सॉरी बच्चों व्हाट मेजर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, मेजर ऑफ एरेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग। सेकंड क्या है, यदि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है यदि हम उसको कंट्रोल करना तो हमें कौन कौन से पॉइंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है फैमिली प्लानिंग, सबसे पहले हमको फैमिली प्लानिंग पर जोर देना होगा। सेकंड पॉइंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब शिक्षा का अधिक से अधिक डेवलपमेंट होना चाहिए और स्वास्थ्य पर भी अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, हमारा जो आर्थिक विकास है उसका भी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। फोर्थ इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जितने भी हमारे सामाजिक कल्याण से रिलेटेड प्रोग्राम हैं वो सब क्या होना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंक्रीज करना चाहिए, तभी तो लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे। फिफ्थ है फॉलोइंग रूल्स रिगार्डिंग द एज ऑफ मैरिज, और जो मैरिज की एज है उसको एक फिक्स कर देनी चाहिए कि बॉयज़ की एज इतनी होगी और गर्ल्स की एज इतनी होगी। तो अभी तो हमारे जो बॉयज़ की एज है गवर्नमेंट रूल्स रिकॉर्डिंग, अभी गवर्नमेंट ने एक मतलब एज को निर्धारित कर दिया है। गवर्नमेंट रूल्स रिकॉर्डिंग द एज ऑफ मैरिज शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पॉलिसी। द एज द मैरिज ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंडिया 21 and 18 years respectively. There should be arrangement of appropriate rewards and punishment. यदि इसके पहले कोई भी शादी करता है लड़का हो या लड़की तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा पनिशमेंट किया जाएगा। 6 पॉइंट एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने चाहिए। 7 पॉइंट्स इंक्रीज इन मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट के जो साधन होने चाहिए वो भी इंक्रीज होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सभी
एग्ज़ाम में कभी भी आंसर्स पूछे जा सकते हैं। और थैंक यू बच्चों, अच्छे से वीडियो को देखिएगा।